बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर। आवर कोर्स इज मैकेनिक्स 1 BS PHY 301 BS Food Science and Technology semester 3rd for the fall semester 2021. So in the previous lecture we talk about the plan chart, introduction to physical quantities। हमने पिछले लेक्चर के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, मैकेनिकल क्वांटिटीज एंड यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन द प्रेजेंट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट स्केलर्स, वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, types of different vectors with respect to their phenomena, vector addition and vector resolution. So let's start with the question, what is scalar? Scalar are those quantities which have only magnitude and no direction, और इन अदर वर्ड्स आप सब लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी कि स्केलर्स आर ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनकी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डिस्क्रिप्शन के लिए किसी किस्म की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल, here we have the length of the car is 4.5 meter. In this situation we have a physical quantity is length और उसको मेजर किसमें किया जा रहा है, मैग्नीट्यूड है उसकी 4.5 मीटर। सो द लेंथ इज एसोसिएटेड विद ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये बात हमें समझ भी आती है और फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेन भी होती है, तो इसलिए ये स्केलर होगी। सिमिलरली द मास ऑफ गोल्ड बार इज 1 kg, so the physical property is mass here and the magnitude is 1 kg. Similarly, the time is 12.76 seconds. Here the physical quantity is time and magnitude is 12.7 seconds. Similarly, the temperature is 36.8 degree Celsius. So it's mean here is the temperature is physical quantity and the 38.8 Celsius degree is the magnitude of that temperature. So in a very simple way we can say that scalar is a physical quantity that only has magnitude. Example के तौर पर हमने ये स्टडी किया कि mass, length, time, temperature, volume, density, all these things, all these physical quantities are known as scalar physical quantities. Similarly, the second question is then what will be the vectors? Vectors क्या होंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। तो vectors are those physical quantities which has the magnitude as well as direction. For example, we have a California map of the world. So there is a state of California and there is North Carolina. For example, हमने ये लिया है। तो अगर कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा कि ये किधर वाक़ है, तो we will talk about like this। हम इस तरह से बताएंगे, पोजीशन ऑफ कैलिफोर्निया फ्रॉम नॉर्थ कैरोलिना is 3600 kilometer in west। So the position is basically a physical quantity and it is associated with the two informations, that is the 3600 kilometer, it is the magnitude, and the invest is the direction. So position described by two another main option or essentials, that is the magnitude as well as direction. Similarly, USA to China, we have a projection. So if somebody wants to move from USA to China, then the displacement from USA to China is 11,600 km in east. The physical quantity is displacement and it also requires two information, 11,600 km and the east is the direction here. So the vector is a physical quantity that has both magnitude and direction. For example, position, displacement, velocity, acceleration, momentum, force are the examples of vector quantities. Similarly, the second question is that how we can represent a vector. So this is the representation of a vector quantity. It's a very simple thing। ये बहुत आसान है जी, और इसको हम बुनियादी तौर पे दो बुनियादी चीज़ों से ज़ाहिर करते हैं। वेक्टर को आमतौर पे हम एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एरो की जो लेंथ होती है वो उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, जबकि एरो की जो डायरेक्शन होती है, एरो का जो एंगल होता है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंडली, अगर टेल लिखा जाए तो जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है इट्स कॉल्ड द टेल,
और जहाँ पे वेक्टर एंड होता है वो उसका हेड कहलाता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ए बी भी लिखी जा सकती है। आप कुछ लोग जो है वो बार नीचे लिखते हैं, कुछ लोग बार जो है ऊपर लिखते हैं, और कुछ लोग एरो भी डालते हैं, कुछ लोग हाफ एरो डालते हैं। तो ये सारे, कुछ लोग बोल्ड करके लिखते हैं, तो ये सारी नोटेशन इस्तेमाल की जा सकती है। सिमिलरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर ये है कि देर आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल कैपिटल a letter with an arrow above it, just like you can say A vector, B vector, P vector. These are the examples. Similarly, some vector quantities are represented by their respective symbols with an arrow above it, just like position. Generally जो मशहूर तरीन वेक्टर्स हैं वो है जी R के ऊपर अगर इस तरह की पोजीशन लिखी जाए in specially mechanics, so we will talk about it is as a position vector. सिमिलरली अगर वेलोसिटी v के ऊपर एक एरो होगा मैकेनिक्स के लिहाज से तो हम इसको वेलोसिटी पढ़ेंगे। अगर f के ऊपर एरो है तो हम उसको फोर्स कंसीडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के लिहाज से ये नोटेशन, ये वेक्टर जो है वो बहुत अहमियत के हामिल है, तो इसको आपने अपने मद्देनजर रखना है। सिमिलरली द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर जो है वो ओरिएंटेशन के लिहाज से हो सकती हैं। इसी तरह और भी डिफरेंट तरीकों से हम इसकी टाइप्स को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओरिएंटेशन के लिहाज से हमारे पास डिफरेंट तरह के वेक्टर्स अवेलेबल हैं। पैरेलल वेक्टर्स, तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन। अगर ए की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन सेम है और पी की डायरेक्शन और क्यू की डायरेक्शन भी सेम है, तो ए बी के पैरेलल है और पी क्यू के पैरेलल है, तो इस तरह की सिचुएशंस को हम कहते हैं कि ये पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। तो इसके अंदर ए बी पैरेलल है आपस में, जबकि इस सिचुएशन के अंदर पी और क्यू आपस में पैरेलल है। सो वी विल टेक इट एज अ पैरेलल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, two equal vectors are said to be equal if they have the same direction and same magnitude. यहाँ पे डायरेक्शन लिखा हुआ है, ये नोट कर लें। So I forget to write here that is the same direction होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जितनी आप नोटिस कर सकते हैं कि जितनी ए की लेंथ है उतनी ही बी की लेंथ है एग्जैक्टली, और इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है जी, पैरेलल है, मीन टू से दे हैव द सेम डायरेक्शन, सो both vectors will be equal to each other. Similarly, for the case of P and Q, we have all the same situation here, so that is why P and Q can be taken as equal vectors. Similarly, anti-parallel vectors are very simple, that is reverse of the parallel vector. दोनों वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे को ऑपोजिट होने चाहिए, तो इस तरह के वेक्टर क्या कहलाते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। एज यू कैन सी दैट अगर ए आपका इस साइड पे है तो B is exactly at 180 degree of A. In the same way, P is 180 degree of Q. So these are called the parallel vectors. So anti-parallel vector. So the negative vector. Negative vector actually is called the reverse vector. Two anti-parallel vectors are said to be negative vector if they have the same magnitude. For example, exactly A और B इसका reverse हो जाए तो it can be taken as A is equal to minus B, and for the case of P and Q तो ये भी एक दूसरे के exactly इनमें से कोई एक दूसरे के एंटी हो जाए, it is called P is equal to minus Q. Here we have two vectors are said to be collinear vectors if they act along a same line. को का मतलब होता है जी सेम साथ, लीनियर से मुराद है जी लाइन। तो ऐसे वेक्टर जो एक साथ एक लाइन पे मुश्तमिल हो हम उन्हें कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। द वेरी सिंपल वर्ड। So A is collinear with the B, P is collinear with the Q because they are having on the same line. So that is why they are called collinear vectors. So another terminology of the vector is called co-initial vectors. The co means same, initial means start. So it means ऐसे vector जो एक ही point से start होते हैं, they are called the co-initial vectors. The two or more vectors have to be co-initial if they have common initial point. So that is ऐसे vector जिनकी heads आपस tails जो है वो सब की आपस में जुड़ी हो, हम उन्हें भी क्या कहा जा सकता है जी, co-initial vectors कहा जा सकता है। As you can see A, B, C, D have the common tail, so that's why it can be taken as co-initial vectors or vectors. Co-terminal method, that is the reverse of co-initial method, are said to be the co-terminus vectors if they have common terminal point. For example, ऐसे vectors जिनका head जो है वो आपस में एक ही point पे आके
कोइंसाइड करते हैं हेड वेक्टर्स के, तो हम उन्हें क्या कहेंगे जी, कोटर्मिनस वेक्टर्स कहेंगे। as you can see a b c and d both all our vectors are terminated at this common point, so that is why such vectors are called terminus vectors. So another form of the vectors are another type of the vector are three or more vectors are said to be coplanar if they lie in the same plane. As you can see, it is a plane which is represented here with the ब्लू एरिया, ये ब्लू एरिया से दिखाया गया है प्लेन, और ये सारे वेक्टर जो है इस प्लेन पे वाक़ है, कोई इससे बाहर नहीं वाक़ है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं जी, हम इसको ओ प्लेनर वेव वेक्टर्स कह सकते हैं। प्लेन से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो ये एक्स वाई प्लेन है और एक्स वाई प्लेन के ऊपर ही ये ए बी सी डी वेक्टर जो है वो वाक़ है, सिचुएट करते हैं, so that's why it is called coplanar vectors. Non-coplanar vectors, as you can see, we have x, we have y, and we have z. So the some vector is associated with this plane, कुछ जो है वो a इधर को है अपवर्ड की तरफ, कुछ जो है b की तरफ, कुछ है c की तरफ। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन पे लाई ना करते हो, हम उन्हें कोप्लेन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। So if they are distributed in a space, तो आप देख सकते हैं a की distribution different है, b की different है, c की different है, that's when they both all three vectors are, you can say, the non-covalent vector. So the type of vector on the basis of effects, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर अब पिछली स्लाइड्स में देखा है, ये वो टाइप्स थी वेक्टर की जो डायरेक्शन के हिसाब से हैं। तो ये जो वेक्टर्स की टाइप्स हैं, ये किसके हिसाब से हैं जी, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट्स के हिसाब से, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हम उसके बारे में बात करते हैं टाइप्स वेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट के बारे में। सो द पोलर वेक्टर्स, the first example, first type of the polar vectors are basically ऐसे vectors having straight line effects are called polar vectors। मतलब कि ऐसे वेक्टर जिनका जो इफेक्ट होता है वो स्ट्रेट लाइन टाइप होता है, हम उसको कहेंगे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स जो है, दीज आर कॉल्ड द पोलर वेक्टर्स। तो एक्सियल वेक्टर जो है ऐसे वेक्टर जिनका जो इफेक्ट होता है वो रोटेशनल टाइप होता है, having rotational effects are called axial vectors, for example angular momentum, angular velocity, angular acceleration, angular displacement, torque, ये सारे का सारा क्या है जी, एक्सियल वेक्टर की एग्जांपल है। सो द वेक्टर एडिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेक्टर एडिशन जो है वो ज्योमेट्रिकल मेथड से हम पहले सीखेंगे, फिर एनालिटिकल मेथड की तरफ जाएंगे। वेक्टर एडिशन इज वेरी सिंपल बट लिटिल बिट ट्रिकी, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर एडिशन के अंदर जो सबसे मेन असूल है वो ये है कि हमने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के अंदर ऐड करना है, तो हमने वो मेथड देखने कि किसकी बुनियाद पे किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक मेथड दैट इज कॉल्ड द ट्रायंगल मेथड। तो जिस तरह आप इजिप्ट, यमन और ईरान के दरमियान का डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, या इनकी पोजीशन कैसे हैं, तो रिजल्टेंट पोजीशन कौन सी बनती है। तो इन द सेम वे ए और बी दो वेक्टर्स हैं, ए का तो आप देख सकते हैं कि इनको इन्होंने ट्रायंगल बनाते हुए ऐड करने की कोशिश की है कि जो सी होगा वो ए प्लस बी के फॉर्म में होगा, जिसको आप यूं भी पढ़ सकते हैं, इट्स बेसिकली हेड टू टेल रूल। फर्स्ट वेक्टर का हेड होता है जी, दूसरे वेक्टर की टेल इसके ऊपर लाई करती है, और जो रिजल्टेंट होता है वो पहले की टेल से लेके आखिर वाले वेक्टर सेकंड वाले वेक्टर के हेड पे जाके लाई कोइंसाइड करती है, so it is called the resultant. So C will be equal to A plus B. It is also called a triangular law or head to tail rule. Similarly, we have parallelogram. Parallelogram जो है वो भी एक बड़ा ही easy way है चीज़ों को solve करने का, and that is the, you can see that there is a force method, जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि आपके पास जितनी यहाँ से फोर्स लगती है उतनी ही अपवर्ड फोर्स लग रही है, और इस दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अगर इसी बात को हम रिवर्स फॉर्म के अंदर स्टडी करने की कोशिश करें तो वी हैव है पैरेललोग्राम, और जिसके अंदर ए सी और बी आपस में ऐड किए जा सकते हैं। अगेन द बेसिक फंडामेंटल लॉ इज द हेड टू टेल रूल। तो ये ए की प्रोजेक्शन है जी, ये बी की प्रोजेक्शन है, और उस हवाले से हमने ए और बी को ऐड किया तो सी हमारे पास आ गया है। पॉलीगॉन लॉ जो है इसके अंदर आपके पास मोर देन 3 वेक्टर्स हों तो हम उसको पॉलीगॉन लॉ के जरिए से सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव फॉर दिस केस दिस इज द इफेक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर।
तो यू कैन सी आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ ट्रांसलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर जरा समझिएगा, हमने इस वेक्टर को उठाया है और ट्रांसलेट करके हमने इसको यहाँ पे ले गए, पर इस ट्रांसलेशन, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ द वेक्टर। इसके अंदर दो चीजों का ख्याल रखना होता है। वो पहली बात यह है कि इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए, दूसरी बात यह है कि इसकी मैग्नीट्यूड में भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस वेक्टर को हमने उठा के एग्जैक्टली इधर रखा, फिर इस बी वाले वेक्टर को उठा के हमने एग्जैक्टली इधर रख दिया, फिर सी वाले वेक्टर को हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पे पुट किया, और डी वाले वेक्टर को हमने यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख दिया। तो यू कैन learn from this figure here. This is was the first head, second tail, second tail, second tail. तो ये एक क्लोज फॉर्म है। तो हमने हेड टू टो रूल में ये पढ़ा था कि जब भी रिजल्टेंट लेना होता है तो पहले वेक्टर की टेल से शुरू करते हैं और आखिर वाले वेक्टर के हेड तक जाना होता है। सो E is basically the resultant here, which is the sum of A plus B plus C plus D is equal to E. So it is called the polygon law. So again, for the case of additive properties, some properties just like commutative, associative properties should hold in vectors. तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम इसको a प्लस बी करें या b प्लस a करें तो दोनों का जवाब सेम रहता है। सो दैट्स व्हाई a प्लस बी और b प्लस c जो है वो कम्यूट करते हैं इन वेक्टर एडिशन रूल। सो वी कैन से दैट द एडिशन ऑफ वेक्टर्स ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। Similarly, associative property. Associative property you can see here a plus b plus c can be equal, should be equal to a plus b plus c. तो अगर आपके पास इस तरह सिचुएशन है जिसके अंदर आपके पास a प्लस बी प्लस सी इसके बराबर आ रहा है, तो आप इसको इस सेंस में भी कर सकते हैं कि आपके पास कोई दो वेक्टर जब ऐड किए जाते हैं तो वो किसी तीसरे वेक्टर से ऐड होंगे, तो उसकी तरतीब का कोई मसला नहीं है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। वो ए प्लस बी के साथ भी एसोसिएट हो सकता है, वो बी प्लस सी के साथ भी एसोसिएट हो सकता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव लॉ कहा जाता है। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर जो है वो बहुत इजी है। जैसे आपने a प्लस बी किया है वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, b की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा जी a माइनस बी हो जाएगा। सो एक्चुअली ये रिवर्स डायरेक्शन ऑफ b करने से आपके पास a माइनस बी कैलकुलेट किया जाता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ b फ्रॉम वेक्टर a डिफाइंड एज एडिशन ऑफ वेक्टर minus b to the vector a. So we have a minus b is equal to, actually that is the addition of minus b. तो अगर आपने इसकी डायरेक्शन a माइनस बी निकालना है तो ये वाली डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो रिवर्स होने की वजह से आपके पास ये वाला जो रिवर्स होने के बाद नीचे डाउनवर्ड आ जाएगा और ये नीचे आपको इसकी तरफ मूव कर जाएगा। वी हैव हियर a माइनस बी एक्चुअली द सेम। वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड्स। वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड वो होंगे जो ज्योमेट्रिकल होंगे और वो आमतौर पे लाया करते हैं जनरली तौर पे ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट निकालने का तरीका जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड या एनालिटिकल मेथड से बहुत इजी है। आपको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। वी हैव अ वेक्टर ए पी, वी हैव वेक्टर क्यू। तो हम इसका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं और वो किस तरह से निकाला जा सकता है। इन लेट्स सपोज वी हैव अ ट्रायंगल ओ सी एम। हमने अपनी मर्जी से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए एक्स्ट्रा पार्ट ए एम और सी एम जो है वो ड्रॉ किया और आप देख सकते हैं ओ सी इज इक्वल टू, so you can say OC squared, Pythagorean theorem इस्तेमाल करते हुए OC square is equal to OM square plus CM square. So you can write here OC square is equal to OM square plus CM square. So OC square is equal to, यहाँ पे OM जो है वो बराबर है OA plus AM. So you can write it as OA plus AM square plus CM जो है वो सेम तो CM ही रहेगा। और आपके पास यहाँ पे a प्लस बी टाइप फार्मूला बन चुका होगा, तो आप a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला जो है वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे बाय एडिंग है a स्क्वायर की बजाय ओ ए स्क्वायर प्लस 2 ओ ए एम प्लस AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर आ जाएगा।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ ए की वैल्यू क्या है जी, ओ ए की वैल्यू आपके पास है जी पी है, और ए एम जो है हमारे पास क्या है, ए एम हमारे पास अननोन है, वी डोंट नो अबाउट दैट, तो हम उस हवाले से इसको ऐड किया जा सकता है। और ए सी स्क्र जो है वो वैसे का वैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि ए एम स्क्र और उसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा जी सी एम स्क्र। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। इन ए सी एम, इस ट्रायंगल को अगर देखा जाए तो इसके अंदर हमारे पास सी ए नहीं है, वो ऐड किया जा सकता है, कंप्यूट किया जा सकता है। अगर ए एम नहीं है तो वो कंप्यूट किया जा सकता है। सो कॉस थीटा जो है हम डिफाइन कर सकते हैं कि थीटा जो है वो बिल्कुल इसके एक्सिस के साथ है, तो ये वाला जो पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड द कॉस थीटा पार्ट, और ये वाला जो पार्ट होगा दैट इज बेसिकली द साइन थीटा पार्ट। So you can write it as AM is equal to actually AC cos theta। सो इसकी वैल्यू को पुट करते हैं ए सी की वैल्यू को, तो ए एम की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। ए एम की वैल्यू जैसे हम पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ स्क्वायर टू ए सी कॉस थीटा प्लस ए सी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे ओ ए एक्चुअली स्टैंड करता है पी स्क्वायर, और यहाँ पे ओ ए की बजाय हम टू पी आ जाएगा। ए सी कॉस थीटा की बजाय ए सी स्टैंड फॉर द क्यू, तो यहाँ पे क्यू आ गया और ये क्यू स्क्वायर हो गया। तो रिजल्टेंट का अगर आप रिजल्टेंट लेना चाहते हैं, सिंगल वैल्यू स्क्वायर नहीं लेना चाहते, तो अंडर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट अप्लाई करने से वी गेट क्यू पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। तो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ द रिजल्टेंट। आप लोग जो पहले क्लासेस में करते आए थे वो एक सिंगल वे था, ये एक जनरलाइज वे है जिसके अंदर आप एंगल भी इन्वॉल्व कर सकते हैं हर तरह के। जस्ट यू हैव टू राइट दिस फार्मूला, पुट एंगल ऑफ द दैट यू हैव गिवन, आपको जो एंगल दिया हुआ है वो यहाँ पे पुट करें, और पी और क्यू की वैल्यूज के मुताबिक आपके पास यहाँ पे रिजल्ट निकल आएगा। सिमिलरली हम इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन निकालना बहुत आसान काम है, साइन थीटा कॉस थीटा निकालें, उसका टैन लें और आपके पास डायरेक्शन आ जाती है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे निकाला जा सकता है, वेरी सिंपल। वी हैव अ ट्रायंगल सी ओ एम एक्चुअली, बट फॉर दिस केस वी कंप्यूटेड दैट वी हैव सी एम, सी एम ओवर ए सी और ए एम ओवर ए सी करके आपके पास सी एम और ए एम की वैल्यू निकल आएगी। और ओ सी एम जो है वो हमारी मेन ट्रायंगल थी, उसके अंदर हमने अल्फा निकालना है, कितने कितना एंगल बनता है रिजल्टेंट का। तो उस वजह से हमारे पास जो है वो सी एम ओ एम, और उस हवाले से आपके पास ओ ए प्लस ए एम आ जाता है। ओ एम जो है उसको हमने दो से तकसीम कर लिया, ओ ए प्लस, और उस हवाले से ए सी इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा एंड ओ ए प्लस ए सी कॉस थीटा। तो ये क्यू साइन थीटा हो जाएगा, ये पी प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। उस हवाले से ये एक जनरल फार्मूला है डायरेक्शन निकालने का। आइए हम डिफरेंट केसेस को स्टडी करते हैं जिसके अंदर हम इन जनरल फार्मूलाज को स्टडी करते हुए अपने स्पेशल फार्मूलाज की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल केस नंबर 1, वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर पी और क्यू वेक्टर जो अगर पैरेलल हैं तो तब रिजल्टेंट क्या होगा वो निकाला जा सकता है, और एंगल क्या होगा। मैग्नीट्यूड के हवाले से बात की जाए तो तब अगर आपके पास पैरेलल होता है तो cos थीटा जो है वो 0 होगा, so we have 0 here and we have only p square over q square, और उस हवाले से p प्लस क्यू आ जाएगा। सीधा सीधा r इज इक्वल टू p प्लस क्यू निकाला जा सकता है यहाँ पे। डायरेक्शन क्या है जी, साइन 0 cos 0, साइन 0 0 होता है जी, समथिंग ओवर 0 0 हो जाएगा, so इट्स मीन एंगल क्या होगा जी 0 होगा। तो ये एक चेक है कि हमने ये ठीक किया है या नहीं ठीक किया। तो आप देख सकते हैं कि जब दो वेक्टर्स का आपस में एंगल 0 बनता हो और वो पैरेलल हो तो रिजल्टेंट एंगल और ये सारा कुछ आपस में क्या बनाएंगे जी 0 डिग्री बनाएंगे। सेकंड केस इज 90 डिग्री, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उस हवाले से आपका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज अगेन वेरी सिंपल, वो है जी cos 90 थीटा की वैल्यू आपने 90 डिग्री पुट की, cos 90 0 होता है, तो वी ओनली लेफ्ट विद p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और ये वही फार्मूला है जनरल जो आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। डायरेक्शन क्या होगी, वेरी सिंपल, तो sin 90 1 आ जाए, q ओवर p आ जाएगा। So it's exactly the same way, q is basically the y component, p is basically the x component। सो ये एंगल निकाला जा सकता है।
So the third case is basically the when the two vectors are anti-parallel to each other. तो आपने थीटा की जगह just 180 पुट करना है, आपके पास b माइनस क्यू और r इक्वल टू b माइनस क्यू की फॉर्म में ये वैल्यू बन सकती है। डायरेक्शन जो है वो निकालने के लिए आपने साइन 180 डिग्री, आप देख सकते हैं कि ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पास एंटी पैरेलल के लिए जो एंगल है वो क्या निकल रहा है, वो या तो जीरो निकल सकता है if p is greater than q, and if p is less than q तो उसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा जी, 180 डिग्री आ जाएगा रिजल्टेंट फॉर्मूला। The most important that is linked with the direction, and ऐसे वेक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन के लिए बताए जाते हैं और इनकी डायरेक्शन जो है वो arbitrary होती है, हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर is a vector that has a minimum magnitude of exactly 1 and drawn in any direction of the vector. So this is the वेक्टर। और इसकी अगर आपने सिर्फ वेक्टर यूनिट वेक्टर बताना हो तो आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स लाइक बोथ डायमेंशन इन यूनिट, so its only purpose to specify direction in space. तो यूनिट वेक्टर जो है उसको हम बाय पार्ट्स भी लिख सकते हैं। अ बिग जो है वेक्टर इज linked with the magnitude as well as the direction. So this is the magnitude part and this is the directional part, which is represented by the unit vector. So a given vector can be expressed as a product of magnitude and vector unit vector. For example, a may be represented as vector is equal to a hat. So this hat is showing the direction of a Cartesian unit system. So it's mean whenever we have some sort of vectors, then we always want to elaborate them with respect to x, y, and z, because we are living in the era where we have to locate everything. So the best way is the Cartesian system. Cartesian system के अंदर हम इसको locate करने का तरीका ढूंढेंगे। उससे पहले आपने इस कार्टेशियन सिस्टम को समझना है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स के अलावा हमने आई यूनिट वेक्टर लिया है, वाई के अलावा हमने जे यूनिट वेक्टर लिया है और जेड के अलावा हमने के यूनिट वेक्टर लिया है। और इसी तरह से इनकी नेगेटिव डायरेक्शन भी ली गई है। जैसे एक्स है तो एक्स माइनस एक्स, वाई है तो माइनस वाई, जेड है तो माइनस जेड की फॉर्म में भी दिया गया है। सो resolution. So the important thing is that whenever we have a vector which is in middle of any of two directions or any of three directions, then उसको हम किस तरह से लोकेट कर सकते हैं, इसको किस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। So it is the process of separating a vector into the two or more vectors in such a way that their combined effect is the same as that of the given vector. मिसाल के तौर पे अगर एक वेक्टर है a, अगर हम उसको उसके दो हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं तो इस अमल को हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहेंगे। और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है वो वही इफेक्ट रखेगा जो आपके पास दूसरे वेक्टर रखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ए वेक्टर की एसोसिएशन टी के साथ देखना चाहते हैं तो वी विल कंप्यूट ए टी कंपोनेंट। अगर इसकी एसोसिएशन हम एन के साथ देखना चाहते हैं तो हम ए एन कंपोनेंट को निकालेंगे। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। हम इसकी कंपोनेंट्स देखना चाहते हैं कि कितना हिस्सा ए का along एक्सिस का है, कितना हिस्सा इसका y का along a का along y axis है। So we have here ax component, we have ay component. So the a can be taken as you can see a trial for this case। तो उन सारी चीज़ों को जो अपनी हमने पढ़ी हैं कि किस तरह से हम हैंड अपना हेड एंड टेल रूल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दिस इज द रिजल्ट और ये अब उसका कंपोनेंट। सो नाउ वी आर डूइंग द रिवर्स इंजीनियरिंग। पहले हमें ये होता था कंपोनेंट्स मिल जाते थे, कंपोनेंट्स मिलने के बाद हम रिजल्ट निकालते थे। अब क्या है जी, आपके पास रिजल्ट मौजूद है, अब आपने कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो उस हवाले से हम देख सकते हैं कि कैसे निकाले जा सकते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस को देखें, अलोंग वाई एक्सिस को देखें और उस हवाले से आप बाहर निकलें और उस हवाले से हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं। सो ए इज इक्वल टू ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर।
So similarly, if we want to compute the directions, तो ये कितना हिस्सा है a का y के साथ, कितना हिस्सा है x का y के साथ, तो ये कंप्यूट किया जा सकता है बहुत ही आसान तरीके के साथ कि a y कंपोनेंट जो होता है वो a मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा है, जबकि a x कंपोनेंट जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा होता है। सिमिलरली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फ्रॉम द कंपोनेंट्स निकाली जा सकती है। एक वेक्टर जब आपने रेजुलेट उसकी रेजोल्यूशन कर ली हुई है तो आप इसकी टोटल मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, टोटल डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं और बहुत आसान तरीके से। आपने अभी पढ़ा था कि जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो तो आपके पास ए एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और अंडर रूट ले लिया जाए तो ये मैग्नीट्यूड निकाली जा सकती है। डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करती है tan इनवर्स इसके ऊपर जी ए वाई कंपोनेंट ओवर ए एक्स कंपोनेंट के ऊपर। सिमिलरली हम इस तरह से किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कंप्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से हम ये जो वेक्टर है इसको हम 3 डायमेंशंस के अंदर भी लेके जा सकते हैं और फर्दर इनकी भी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जा सकता है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन को पढ़ेंगे, वेक्टर्स को इन 3 डायमेंशनल एनालिसिस के साथ स्टडी करेंगे। फिर हम वेक्टर ऑपरेशंस की बात करेंगे कि वेक्टर आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे या आपस में रिलेट करते हैं तो वो आपस में ऑपरेट कैसे करते हैं इसको पढ़ेंगे। आफ्टर दैट स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी और अगर किसी किस्म का कोई परेशानी, किसी किस्म की कोई इश्यूज हैं तो आप लेक्चर के मुताबिक तो लाजमी क्वेश्चन आंसर के अंदर पूछिएगा। और इस लेक्चर से रिलेटेड किसी भी किस्म की डिस्कशन के लिए हमारे फोरम जो है वो इंटरेक्टिव सेशन के तौर पे अवेलेबल रहेंगे, जूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई मसला है तो आप लाजमी रब्ता कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।